Welcome everyone. This is Shrestha Katamahant. Before we start the chapter, let me ask you one question. Do you like traveling? The writer of this chapter, Vikram Seth, enjoys it very much. In his book Heaven Lake, he describes a long journey from China to India via Tibet and Nepal. Think of a temple, mosque, gurdwara, church, or any other holy place in your city. How does this place look like? And how does its surrounding look like? Pause for a moment and think about it as you read Vikram Seth's description of Kathmandu. अपने आसपास के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य किसी पवित्र स्थान के बारे में सोचें। वे कैसे दिखते हैं और उनके आसपास का माहौल कैसा दिखता है। विक्रम सेठ के काठमांडू के विवरण के बारे में पढ़ते हुए उन सभी जगहों के बारे में सोचें। Let's start your 10th lesson of Beehive textbook, Kathmandu. In it, author says, I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. The next morning, with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. लेखक कहते हैं, मैं नगर के मध्य में एक सस्ता सा कमरा ले लेता हूँ और कई घंटों तक वहाँ सोता हूँ। अगली सुबह मैं मिस्टर शाह के पुत्र और भतीजे के साथ काठमांडू के दो मंदिरों को देखने जाता हूँ जो हिंदुओं और बौद्धों के लिए अत्यंत पवित्र हैं। At Pashupatinath, outside which a sign proclaims entrance for the Hindus only, there is an atmosphere of febrile confusion. Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the ground. पशुपतिनाथ मंदिर में जिसके बाहर केवल हिंदुओं के लिए प्रवेश यह शब्द लिखे हुए हैं, वहाँ पूरी तरह उथल पुथल का वातावरण है। खुले मैदान में पुजारी, फेरी वाले, भक्तजन, पर्यटक, काउज, monkeys, pigeons, dogs इधर उधर घूम रहे हैं। We offer a few flowers. There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. हम कुछ फूल चढ़ाते हैं और वहाँ पूजा करने वाले इतने अधिक लोग हैं कि पुजारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ लोगों को दूसरे लोग कोहनियां मारकर परे हटाकर अपने आप आगे आने की कोशिश करते हैं। A princess of the Nepalese royal house appears. Everyone bows and makes way. By the main gate, a party of saffron-clad Westerners struggle for permission to enter. नेपाल के शाही घराने की राजकुमारी वहां आती है। प्रत्येक अपना सिर झुकाता है और रास्ता छोड़ देता है। मेन गेट पर केसरिया कपड़े पहने हुए पश्चिमी देशों से आए हुए लोगों का एक ग्रुप प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। The policeman is not convinced that they are the Hindus. Only Hindus are allowed to enter the temple. A fight breaks out between two monkeys. One chases the other, who jumps onto a Shivlinga, then runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bhagmati that flows below. वहां खड़े पुलिसमैन को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि वे हिंदू हैं। केवल हिंदुओं को मंदिर में जाने की अनुमति है। दो बंदरों के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। एक दूसरे का पीछा करता है और उछलकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है और फिर जोर जोर से चिल्लाता हुआ मंदिर के चक्कर लगाने लगता है और फिर नीचे की तरफ बहती हुई पवित्र भागमती नदी की तरफ भाग जाता है। A corpse is being cremated on its banks. Washerwomen are at their work and children bathe. From a balcony, a basket of flowers and leaves, old offerings, now wilted, is dropped into the river. इसके किनारों के ऊपर एक मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है। धोबी में अपना काम कर रही होती है और बच्चे
नहा रहे होते हैं। एक छज्जे के ऊपर से मुरझाए हुए फूलों, पत्तों और पुरानी भेंटों की एक टोकरी नदी में फेंक दी जाती है। A small shrine half protrudes from the stone platform onto the river bank. When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kalyug will end on earth. एक छोटा सा मंदिर नदी के किनारे के ऊपर बने हुए पत्थर के मंच में से पानी के ऊपर आधा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब यह पूरा पानी के ऊपर आ जाएगा तो इसके अंदर की देवी बाहर निकल आएगी और धरती के ऊपर कलयुग का बुरा समय समाप्त हो जाएगा। At the Bodhnath Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness. Its immense white dome is ringed by a road. आप चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हमारे जो राइटर विक्रम सेठ हैं वो पशुपतिनाथ से निकलकर बौद्धनाथ स्तूप में पहुंच जाते हैं और वे कहते हैं कि बौद्धनाथ स्तूप में जो काठमांडू का एक बौद्ध धर्म स्थल है वहां पशुपतिनाथ के विपरीत पूरी तरह से खामोशी का वातावरण है। इसके विशाल सफेद गुंबद के चारों तरफ एक सड़क घूमती है। Small shops stand on its outer edge. Many of these are owned by Tibetan immigrants. Felt bags, Tibetan prints, and silver jewelry can be bought here. There are no crowds. This is a heaven of quietness in the busy streets around. इस सड़क के बाहरी किनारे के साथ साथ छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं। इनमें से अनेक दुकानों के मालिक तिब्बत से आए हुए अप्रवासी लोग हैं। नमदे के बने हुए थैले, तिब्बती छींट और चांदी के आभूषण यहाँ खरीदे जा सकते हैं। वहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है। चारों तरफ के व्यस्त गलियों के मध्य यह खामोशी भरा एक आश्रय स्थल है। Kathmandu is vivid, mercenary, religious, with small shrines to flower-adorned deities along the narrowest and busiest streets, with fruit sellers, flute sellers, hawkers of postcards, shops selling Western cosmetics, film rolls and chocolate, or copper utensils and Nepalese antiques. लेखक कहते हैं कि काठमांडू जीवन और जोश से भरपूर, लोभी और धार्मिक है, जहां अत्यंत तंग और व्यस्त गलियों में फूलों से सजे हुए देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं, जहां फल बेचने वाले, बांसुरियां बेचने वाले, घूमकर पोस्ट कार्ड बेचने वाले और वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, फोटो खींचने की रीलें, चॉकलेट और पीतल के बर्तन और नेपाली प्राचीन वस्तुओं की दुकानें हैं। Film songs blare out from the radios. Car horn sound, bicycle bell rings, stray cows look questioningly at motorcycles, vendors shout out their wares. रेडियो से फिल्मी गाने सुनाई देते हैं, कारों के हॉर्न बजते हैं, साइकिलों की घंटियां टन टन करती हैं, मोटरसाइकिलों को देखकर आवारा गायें एक प्रकार से प्रश्न पूछती हुई आवाजें करती हैं और फेरी वाले आवाजें लगा लगा कर अपनी चीजें बेचते हैं। I indulge myself mindlessly by a bar of marzipan, a corn on the cob, roasted in a charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder and lemon, a couple of love story comics and even a Reader's Digest. मैं बिना सोचे अपने दिल की इच्छाएं पूरी करता हूँ। बादाम से बनी मिठाई की एक टुकड़ी खरीदता हूँ, पटरी के ऊपर रखी अंगीठी के कोयले में भुना हुआ मक्के का एक भुट्टा खरीदता हूँ, जिसके ऊपर नमक, पिसी हुई मिर्च और नींबू रगड़ा हुआ होता है। एक तो लव स्टोरीज वाली मैगजीन्स और एक रीडर्स डाइजेस्ट भी खरीद लेता हूँ। All this I wash down with Coca-Cola and a nauseating orange drink and feel much the better for it. इन सबके साथ मैं कोका कोला और जी मिचड़ा देने वाला संतरे का रस लेकर पीता हूँ, जिससे मैं कुछ बेहतर महसूस करने लगता हूँ। I consider what route I should take back home. If I were propelled by enthusiasm for travel per se,
I would go by bus and train to Patna, then sail up to the Ganges, past Banaras to Allahabad, then up to Yamuna, past Agra to Delhi. मैं सोचने लगता हूँ कि घर वापस जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाऊं। यदि मैं केवल यात्रा करने के उत्साह से ही प्रेरित होता तो मैं पटना तक बस तथा गाड़ी द्वारा जाता, फिर गंगा नदी के ऊपर की तरफ नौका द्वारा यात्रा करता हुआ बनारस के पास से निकलता और इलाहाबाद पहुंच जाता, फिर यमुना नदी के ऊपर की तरफ आगरा के पास से निकलता हुआ दिल्ली पहुंच जाता। But I'm too exhausted and homesick. Today is the last day of August. Go home, I tell myself. Move directly towards home. I enter a Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow's flight. लेकिन मैं बहुत थका हुआ हूँ और घर की याद भी आ रही है। आज अगस्त का अंतिम दिन है। मैं स्वयं से कहता हूँ कि घर चलो, सीधे घर की तरफ चल दो। मैं नेपाल एयरलाइंस के एक ऑफिस में प्रवेश करता हूँ और अगले दिन की उड़ान के लिए एक टिकट खरीद लेता हूँ। I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel. In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 bansuris protrudes in all directions like the quills of a porcupine. अब अपनी वापसी का टिकट बुक करवाने के बाद अपने होटल में वापस आकर हमारे लेखक क्या देखते हैं? मैं होटल के नजदीक चौराहे के एक कोने में खड़े हुए एक बांसुरियां बेचने वाले की तरफ देखने लगता हूँ, जिसके हाथ में एक लंबी छड़ है, जिसके ऊपर की तरफ जोड़ी हुई कोई चीज है, जिससे 50 या 60 बांसुरियां सभी दिशाओं में ऐसे निकली हुई हैं जैसे किसी साही के लंबे कांटेदार बाल। साही यानी पर्क्यूपाइन को आप पिक्चर में देख सकते हैं। They are of bamboo. There are cross flutes and recorders. From time to time, he stands the pole on the ground, selects a flute and plays for a few minutes. वे बांस की बनी हुई हैं और उनमें अंग्रेजी बांसुरियां तथा रिकॉर्डर हैं। ये भी एक तरह की बांसुरी होती है। तो कभी-कभी वह अपनी लंबी छड़ को जमीन पर टिका देता है, एक बांसुरी चुनता है और कुछ एक मिनट के लिए इसे बजाता है। The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawker's cries. He plays slowly, meditatively, without excessive display. उसकी आवाज ट्रैफिक के शोर और फेरी वालों की आवाजों के ऊपर स्पष्ट सुनाई देती है। वह धीरे धीरे विचार मग्न हुआ और बिना किसी अत्यधिक दिखावे के अपनी बांसुरी बजाता है। He does not shout out his wares. Occasionally, he makes a sale, but in a curiously off-handed way, as if this were incidental to his enterprise. Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller. I imagine that this has been the pattern of his life for years. वह अपनी चीजों को चिल्लाकर नहीं बेचता है। कभी-कभी वह एक आध बेच लेता है, किंतु एक आश्चर्यजनक लापरवाही के ढंग से, मानो उसके काम का यह कोई आकस्मिक होने वाला हिस्सा हो। कभी-कभी वह फल बेचने वाले के साथ बातें करने के लिए अपनी बांसुरी बजाना बंद कर देता है। मेरा अनुमान है कि कई वर्षों से उसके जीवन का यही ढंग रहा है। I find it difficult to tear myself away from the square. Flute music always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sounds. अब लेखक कह रहे हैं कि मुझे चौराहा छोड़कर जाना मुश्किल प्रतीत होता है। बांसुरी का संगीत सदा ही मेरे साथ ऐसा करता है। यह पूरे संसार का अत्यंत साझा सुर है। साझा यानी यूनिवर्सल, जो कि सबके लिए हो, और अत्यंत व्यक्तिगत भी। पर्टिकुलर मीन्स व्यक्तिगत। There is no culture that does not have its flute. The reedney, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America, the high-pitched Chinese flutes.
लेखक कह रहे हैं कि ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जिसकी अपनी अलग बांसुरी ना हो। वहां सरकंडे की बनी हुई मुरली होती है, रिकॉर्डर होता है, जापानी शाकुहाची होती है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वाली गहरी आवाज पैदा करने वाली बांसुरी होती है। दक्षिण अमेरिका की स्पष्ट तथा मोटी आवाज वाली अलग अलग बांसुरियां तथा चीन की ऊंची आवाज वाली बांसुरियां होती हैं। भाव यह है कि जबकि बांसुरी पूरे संसार में बजाई जाती है, इसकी बनावट और इसकी अंगुलियों वाले जो छेद हैं वे सब अलग अलग होते हैं। इसी वजह से इसका साउंड हर जगह अलग तरह का होता है। Each has its specific fingering and compass. It weaves its own associations. Yet, to hear any flutist, it seems to me to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice. प्रत्येक की अपनी विशेष अंगुलियां रखने की स्थिति और बनावट होती है। यह अपने साथ अपनी अलग यादें बुन लेती है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बांसुरी को सुनना पूरी मानव जाति के साझे समूह में आकर्षित हो जाना होता है। संगीत द्वारा मानवीय आवाज के सुर और भाव के अत्यंत समीप आना होता है। कहने का मतलब यह है कि लेखक कहना चाहते हैं कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मनुष्य की आवाज और उसके भाव को इतनी नजदीकी और बारीकी से व्यक्त नहीं कर सकता जितना कि बांसुरी कर सकती है। Its motive force too is living breath. It too needs to pause and breathe before it can go on. अब हमारी कहानी के लेखक बांसुरी को कैसे बजाया जाता है इस बारे में बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इसकी जो चालक शक्ति है वह जीवित सांस है और जीवित सांस की भांति इसे भी रुकने और सांस लेने की जरूरत पड़ती है ताकि यह निरंतर बजती रह सके। That I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first. For on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. पहले तो मुझे हैरानी होती है कि बांसुरी के थोड़े से जाने पहचाने सुरों के द्वारा मैं इतना प्रभावित हो सकता हूँ, क्योंकि पहले के अवसरों पर मैं विदेश से जब भी एक लंबी अनुपस्थिति के बाद घर लौटता था तो शायद ही कभी ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता था और निश्चय ही मैंने कभी भी इन्हें इतना महत्व नहीं दिया जितना अब दे रहा हूँ। Did you notice? A travel not only gives you joy but also shows you few things about the culture of that place. Besides, this is also an opportunity for you to learn new things about life and world around us. So next time when you visit a new place, keep your eyes open to learn and explore new things. तो देखा आपने, एक नई जगह की यात्रा आपको ना सिर्फ आनंद देती है बल्कि आपके आसपास की दुनिया और जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। तो जब भी आप अगली बार किसी जगह पर घूमने के लिए जाएं, अपनी आंखें खुली रखें और जीवन और दुनिया के बारे में सीखने का भी आनंद लें। So, see you soon in some next video. Till then, keep enjoying learning English. Thank you.